अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I audible? Walaikum assalam, Nasreen. Alhamdulillah, you are. Clear, huh? How are you? I'm good, alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Yes. छोटा ठीक है? Yes, alhamdulillah. All settled Alhamdulillah. now. Yeah. But another thing is coming up, so maybe next week or so I will inform inshallah what's going on because इसका inguinal hernia detect हुआ है, तो maybe next week I'll have appointment for that also, and Okay. vaccination and a lot of things happening. So inshallah I'll try my best. Yeah. Yeah, and then as I had mentioned earlier, exams भी मेरे final semester का चल रहा है exams. So that is there until first week of January. So जैसे भी I'm able to cope up, if I'm able to find adjust time, then inshallah I will continue. Otherwise, I will send a Inshallah. message. जो नहीं कर पाएंगे, Okay. वो I will send a message. हाँ. So bear with me. Inshallah. December जी, and inshallah. No January problem. first week थोड़ा सा Take your hectic. time. Yeah. Mm-hmm. Let's begin 22nd session of our Golden Stories of Umar ibn Khattab radiallahu anhu. The Mail of the Muslim Fighters, page number 188. Whenever mail arrived from the battlefield, Umar radiallahu anhu would check it properly and convey the letters and messages to the houses of the fighters. He would say to their families, your males are fighting in the path of Allah and you are in the city of Allah's messenger. If you can read and write its reply, then it is good. Otherwise, I will read it to you and write your reply on your behalf. It was in this manner that the greatest ruler of his time would go to every house of Medina and fulfill the responsibility of delivering the mail. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जब सोल्जर्स जो है बैटलफील्ड में होते थे, तो उनके जो लेटर्स होते थे अपनी फैमिली के लिए, वो सोल्जर्स और वो आर्मी मैन के, तो वो अपने हाथ से जाकर उनके घर वालों तक डिलीवर करते थे और उनको कहते थे कि आपके जो मर्द हजरात हैं वो अल्लाह की राह में जंग कर रहे हैं और आप लोग जो है वो रसूल अल्लाह की सिटी में हो। अगर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो इनका रिप्लाई तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ और आप लोगों के बिहाफ में रिप्लाई भी उनको करता हूँ। इस तरीके से आप देखें, द रूलर, द खलीफा ऑफ द टाइम, द अमीर उल मोमिनून, द फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर यूज्ड टू बिकम अ पोस्टमैन। वो जाके घर घर उनकी चिट्ठियां पहुंचाते थे और उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। यू नो हाउ ग्रेट इज दिस एंड how much it is going to prove us कि what kind of a leader he was. सुभान अल्लाह, किस तरीके से उन्होंने अपनी खिलाफत में या अपनी रूलरशिप में एक एक बंदे और एक एक लोगों के तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बखूबी अदा की। नाउ दिस इज रियली वे टू हाई, यानी हम लोग ये सोच नहीं सकते कि कोई सीईओ या चेयरमैन जो है वो पोस्टमैन बन के पर्सनली जाके इस तरीके का काम अंजाम देंगे, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु टुक इट एज हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जाके उन फैमिली वालों से मिलकर उनको लेटर डिलीवर करके उनको सुना के, आई मीन ही वाज सच अ मैग्निफिसेंट कैरेक्टर, सुभान अल्लाह। Taking care of the houses of the Islamic fighters, Umar radiallahu anhu would be conscious of his great responsibility for caring for the homes of the Islamic fighters. He would go to their homes and say to their family members, your males are not present, so let me know if you are in need of anything. If you need something from the market, then I will purchase it on your behalf. Most of the women would send their female servants with Umar radiallahu anhu, and he would purchase the supplies from the market and give it to their female servants. If any woman did not have money, then he would use his own money for the purchase. अभी हमने देखा कि किस तरीके से वो उनकी चिट्ठियां पहुंचा रहे हैं, उनके मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। अब उनके घरों के भी वो ख्याल रखते थे, घर में कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ लाना है, मार्केट से सामान चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़, वो भी वो जा जाके उनसे उनका हाल पूछते थे और फिर उसके बाद उनको प्रोवाइड करते थे। जो फीमेल्स होती थी वो अपने जो नौकरानी या खद्दामाज होती थी फीमेल, उनको उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के साथ भेजकर अपनी चीज़ें ले आती थी। और कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ पर पैसे नहीं थे उनके खुद के, तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अपने पॉकेट से उनको स्पॉन्सर करते थे। और उनके आप वर्ड्स देखें कि आपके जो वो कहते थे उनके घर वालों को कि आपके मेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है
तो आप मुझे बताएं और मैं आपके लिए खरीदूंगा। यानी इतनी पर्सनलाइज्ड सर्विस आप कहीं नहीं देख सकते, ना आपने कभी देखा होगा ना आपने कभी सुना होगा। एंड सुभान अल्लाह, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु डिड इट। Umar refuses his wife's offer. Upon receiving a shipment of perfume from Bahrain, Umar Adilanu said, by Allah, I would love to find a woman who is good at weighing things so that she can weigh this perfume for me and so that I can then distribute it among the general population of Muslims. एक बार एक बड़ा शिपमेंट ऑफ परफ्यूम आया बहरीन से, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो कि वज़न अच्छा करती हो और वो अच्छी तरह से वज़न करे इस परफ्यूम को, ताकि मैं इसको अपने जनरल पॉपुलेशन जो है उनमें बांट दूँ। His wife, Atika bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu anha said, I am good with weights, so bring the perfume and I will weigh it for you. Umar radhiyallahu anhu said, no. She asked why. He said, verily I am afraid that you will take it, that you will hold it like this to show her what he meant. He placed his fingers on his temples and that you will rub some of it onto your neck. Consequently, I will have received more of the share of the perfume than any other Muslim. अब ये तलाश कर रहे थे कि कोई एक ऐसी लेडी मिले जो कि वे कर सके, तो उनकी जो वाइफ है अतिका बिन जैद बिन अमर बिन नुफैल रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने कहा कि मैं इस काम में माहिर हूँ, आई कैन डू वेइंग थिंग, तो आप मेरे पास दे दो परफ्यूम, मैं उसको वे कर लेती हूँ और डिस्ट्रीब्यूट यानी सेपरेट सेग्रीगेट कर लेती हूँ। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको नाप कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो वो कहते हैं कि क्योंकि तुम ये नॉर्मली हम लोग आप देखे होंगे कि परफ्यूम को व्हेन डू यू गेट the exact fragrance of it, when you rub it on your hand, you rub it आपके ईयर के पास आप रब करते हो, टेम्पल्स के पास रब करते हो, जब वो रब होता है, फ्रिक्शन होती है, तो उसकी महक प्रॉपर्ली आप एनालाइज कर सकते हो। तो वही उमर इब्न खत्ताब इज शोइंग हर कि अपने टेम्पल्स पे या नेक पे आप रब करोगी तो क्या होगा, मेरे हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा परफ्यूम और वो मुझे पसंद नहीं या वो मुझे मंजूर नहीं। अब देखिए कितनी बारीकी से वो सोचते हैं, और ख़ास तौर से जहाँ पर उनकी फैमिली या उनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा हो, जिसमें कि कुछ कहीं पर भी किसी के भी दिल में ख्याल आ जाए कि हाँ ये किसी टाइप का वास्ता चल रहा है यहाँ पर, वो चीज़ को उन्होंने कभी होने नहीं दिया। वो उसी वक्त उसको कट कर देते थे कि कोई फितना बरपा ना हो और कोई ज्यादती ना हो। अलोन फॉर हिंद बिन उत्बा। Hind radiallahu anha was among the best and wisest of Quraysh's women. However, at the end of her life, she seemed to have been afflicted with certain financial troubles. Prior to the advent of Islam, Hind was married to Hafs bin al-Mughira, Khalid bin al-Walid's grandfather. Then she married one of the Makkah's most respected chieftains, Abu Sufyan. हिंद रदिलाना जो थी वो बहुत बेस्ट और वाइज मानी जाती थी कुरैशी वुमेन में, लेकिन आखिरी वक्त पर उनको थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए। बिफोर इस्लाम, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हिंद जो है वो मैरिड थी हफ्स बिन अल मुगीरा, खालिद बिन अल वलीद के ग्रैंडफादर से, जो कि बहुत उसके बाद देन शी मैरिड वन ऑफ द मक्काज मोस्ट रिस्पेक्टेड चीफ्टेंस अबू सुफियान, फिर उसके बाद उनकी शादी अबू सुफियान के साथ हो गई। द टू रिमेन टुगेदर एज लॉन्ग एज दे वर एट वॉर विद द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस रदियल्लाहु अन्हुम, एंड इवन आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम दे रिमेन टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब वो लोग दोनों इस्लाम के दुश्मन थे तब भी वो साथ थे, और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद भी दे वर टुगेदर। Towards the end of his life, however, Abu Sufyan Radilanu divorced Hind Radilana, and while Hind Radilana was not a widow, she was a divorcee who needed money for her upkeep. लेकिन फिर एंड में इनकी डिवोर्स हो गई थी, और इस वजह से हिंद को जो है अपने मेंटेनेंस के लिए पैसों की थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, बिकॉज वो तलाकशुदा थी, तो उनका कोई सपोर्ट या मेंटेन करने के लिए कोई महरम मौजूद नहीं था। So she Radilana went to Umar Radilanu and asked him to loan her some money from the Muslim treasury. She Radilana explained that she intended to invest the money in the marketplace. तो वो क्या किया उन्होंने, वो उमर रदिल्लाहु के पास गई और उनसे कहा कि कुछ लोन दे दिया जाए मुस्लिम ट्रेजरी में से, और उन्होंने बताया कि वो है ना इन्वेस्ट करना चाहती है मार्केट प्लेस में। उमर रदिल्लाहु lent her 4,000 dirhams with some principal capital in her hand. Hind Radilana traveled to the lands of Kalb where she started up a business buying and selling merchandise. अब उनको उमर रदिल्लाहु ने 4,000 दिरहम्स लोन पे दे दिए और कुछ प्रिंसिपल कैपिटल उनके हाथ में दिया। तो वो ट्रैवल करके गई लैंड्स ऑफ कल्ब में और वहां पर जाकर कुछ बाइंग एंड सेलिंग किया उन्होंने बिजनेस।
During her stay abroad, Hind radiallahu anha visited her son Muawiyah radiallahu anhu, who at the time was Umar's governor of Sham, Syria and surrounding regions. अब ये हुआ कि उस टाइम पे हिंद अपने बेटे के पास मिलने गई, मुआविया, जो कि अशाम में गवर्नर के ओहदे पर थे. It is related that during her visit to her son, Hind radiallahu anha said to Muawiyah, he is indeed Umar radiallahu anhu, and he works only for the sake of Allah Azza wa Jal. It was as if Hind radiallahu anha was at once praising Umar radiallahu anhu and exhorting her son, who like Umar radiallahu anhu held a position of authority, to follow the good example that Umar radiallahu anhu had set as a leader. तो उन्होंने क्या किया, वो अपने बेटे से मिलने गई और फिर उधर जाके उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु की तारीफ की और फिर कंफर्म भी किया कि वो जो भी काम करते हैं वो सिर्फ अल्लाह की खातिर करते हैं. वो उमर रदियल्लाहु अन्हु की बहुत यानी हाईली शी वाज प्रेजिंग हिम और अपने बेटे को बता रही थी, क्योंकि उनका बेटा भी जो था वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में था, तो वो उनको एक नसीहा के तौर पे या सिखाने के तौर पे उनको एडवाइस दे रही थी कि उन्होंने भी उमर रदियल्लाहु अन्हु का एग्जाम्पल जो है वो फॉलो करना चाहिए एज अ रिजल्ट, as a leader. The difference between Abu Bakr and Umar. The famous writer Mahmoud Abbas al-Aqad wrote, the difference between Abu Bakr and Umar is that Abu Bakr recognized Muhammad sallallahu alaihi wasallam as being a prophet because he knew his character prior to prophethood, as he was a close friend to him. However, Umar recognized Muhammad as being a prophet upon accepting Islam, as his closeness to the prophet was not on the same level as Abu Bakr's. When Umar observed any wrong being done in the company of the Prophet, he would ask immediately, "O Allah's Messenger, permit me to kill that wrongdoer." If Allah's Messenger were to permit him to do so on every occasion, then he would have killed dozens of people. Like all humans, the Prophet also left this world. Umar took his unsheathed sword in his hand and said, "If anyone says that Allah's Messenger has died, then I will sever his head from his shoulders." फेमस राइटर महमूद अब्बास अल-अक़द लिखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हु क्या था. तो ये था कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे बिफोर नबूवत के भी, तो उनके एक पर्सनल रिलेशनशिप जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी. एडवेंट ऑफ इस्लाम के पहले भी वो उनको जानते थे. लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफ्टर प्रॉफिटहुड, आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम ही उनकी क्लोजनेस उनके साथ हुई. और इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के कंपैरिजन में उमर रदियल्लाहु अन्हु की क्लोजनेस विद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम नहीं है, बहुत फर्क है. जब कभी भी उमर रदियल्लाहु अन्हु कुछ देखते थे कि गलत हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी के टाइम, यानी उनके हयाती के टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ गलत काम हुआ है, तो वो इमीडिएटली पूछते थे, परमिशन लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अलाउ मी टू किल दैट रॉन्ग डूअर, यानी मुझे परमिशन दीजिए कि मैं वो जिसने गलत काम किया है उसका कत्ल कर दूं. और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिशन दी होती तो उन्होंने अब तक के डजन्स का कत्ल कर चुके होते. लेकिन हर इंसान की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया को छोड़ गए और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त, यानी ये वो वाला किस्सा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ डिक्लेयर हुई थी, तभी उन्होंने अपने हाथ में खुली तलवार रखी और फिर कहा कि अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी जो है वो फौत हो गए तो मैं उसका सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा. यानी दिस इज जस्ट अ स्टोरी, जस्ट अ किस्सा फ्रॉम द फेमस बुक ऑफ महमूद अब्बास. वी हैव ऑलरेडी रेड इन डिटेल कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था. Here is a woman whose complaint Allah subhanahu wa ta'ala heard from above the seven heavens. One day, Umar radiallahu anhu left the masjid in the company of Al-Jarud al-Abdi. When a woman approached them on the pathway, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu extended greetings of peace to her. She replied his greetings and then said, एक दिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद से वो निकले और अल-जरूद अल-अबदी के साथ थे, तो एक औरत उनको रास्ते में मिली
उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको सलाम किया और उन्होंने फिर सलाम का जवाब देते हुए ये कहा, ओ उमर, I knew you when you were called Umair in a grammatical sense. Umair is the diminutive form of name Umar. In the Uqad marketplace, when you were frightening other children with your stick. Then, as the days went by, you came to be known as Umar. That is, you came to be known by your proper name instead of by a nickname. Then, as even more days went by, you finally came to be known as the leader of the believers. Fear Allah subhanahu wa ta'ala regarding your people. Know that a person who truly fears Allah's warning believes with certainty that that which is seemingly far off, the day of judgment, is actually near at hand. And know that whoever is afraid of death is afraid of missing out on the opportunity to perform good deeds and to make good use of one's time in this world. अब ये लेडी क्या कहती है? उन्होंने कहा कि उमर रदियल्लाहु मैं तुमको तब से जानती हूँ जब से तुम उमैर बुलाए जाते थे, यानी होता है ना हम लोग निकनेम करते हैं, उस तरीके से उमर रदियल्लाहु को उमैर बोलते थे लोग। और फिर उसके बाद कहाँ पर? उकाड़ मार्केट प्लेस में, वहाँ पर आप जो है बच्चों को अपनी स्टिक से डरा रहे थे। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए आपका नाम फिर उमर प्रॉपरली लोग बुलाने लगे इंस्टेड ऑफ योर निकनेम। और फिर आगे और दिन जाने लगे, फिर आप अमीरुल मोमिनून हो गए। फिर वो कहती है अल्लाह से डरें लोगों के मामलात में, कि जो अल्लाह से सच्चा डरता है और बिलीव करता है यौमुल आखिरा में, जो कि हम सोचते हैं कि बहुत दूर है बट हकीकत में वो बहुत करीब है, और जिसे मौत का भी डर हो और इसका भी डर हो कि कहीं उससे कहीं कोई नेकी करने का मौका मिस भी ना हो जाए और वो इस दुनिया में अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करता हो। Jarud then said, O woman, you have lectured the leader of the believers too much. Umar radiallahu anhu said to Jarud, leave her alone. Do you know who she is? She is Khawla bin Thalaba radiallahu anha, the woman whose words Allah subhanahu wa ta'ala heard from above the seven heavens. That is the woman regarding whom a verse of the Quran was revealed. Certainly, therefore, it is Umar's solemn duty to listen to her. Just 1 second, guys. ओके, फिर उमर जरूद जो थे उनके साथ, उन्होंने कहा कि आपने अमीरुल मोमिनीन को बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जरूद को कहा कि उसको अकेला छोड़ दो। आप जानते हो वो कौन है? कहते हैं वो है खौला बिन सलाबा रदियल्लाहु अन्हा, वो औरत जिसके वर्ड्स जो हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सातों आसमान के ऊपर से सुने थे एंड रिस्पॉन्ड किया था, एंड एक वर्स उनके मामलात में रिवील हुई थी। तो इसीलिए उमर रदियल्लाहु अन्हु की ये ड्यूटी है कि वो उस औरत की बात तसल्ली से आराम से पुरसुकून होके सुने। Treating agents and governors if they fell sick. Muaqib, who was Umar's keeper of the public treasury, fell sick, and Umar radiallahu anhu asked for a remedy for him from everyone who, 1 second guys,